of disasters, including what had happened in Balakot city. The new Balakot city has not been built, and Mr. Shiraz is joining us, and he will talk about it more than myself. So I welcome you all to this webinar, and the whole purpose was primarily to take up this issue again and again, as long as our policy makers do not act according to the policy which they have formulated after the earthquake. Thank you very much. Over to Mavra. Thank you so much. And I would just like to first request everyone, I forgot to say this at the beginning of the program, if everyone who is not speaking currently could kindly mute their speakers before we continue, because otherwise there's a lot of like background noise. So anyone who is not speaking, if they could kindly mute their mic, that would be really helpful. Thank you. So I'd like to start on the other section of our program, and this is the part where we are telling tales of disaster experiences, and I would like to begin with the community representatives right now. So Dr. Farid is a journalist, and I would like him to briefly tell us about his experiences as a journalist, but also as a community representative. So, Dr. Farid, I hand over to you. Dr. Farid will join us in a while. He is not with us right now. Acha. Is Shah Ahmed Khan here, a community activist? I can start with him then. No. He's also not available. Okay, sorry about that. So then I think let's get on to the media, because media is our voice and ears in such disasters, and they have a really good scope, on what the scope of the disaster was. So Dr. Abdul Qaddus, is he here? He's the president of Balakot Press Club. Hello? Sorry, just 1 second. I'm just looking at the agenda once again. Saita, can you hear me? Sorry, 1 second. I think there's a problem with the mic. Hello, ma'am, your mic is fine. People did not join due to connectivity issue. They will join soon. Okay, so can I think is Mr. Shiraz Mahmood Qureshi able to join? Yeah. Yes. Okay. Because I can't see all of the participants, unfortunately, I can't see all of the participants who are here. So I don't know who is available. Shiraz Mahmood Qureshi Saab is with us. Hamood Saab is with us. Zulfikar Saab is with us. Ismail Shah Saab is with us. Okay. Okay. So can I please kindly start? Could I hand over, the mic to Mr. Shiraz Mahmood Qureshi, who is a social activist, and he was responsible to influence the Chief Justice of the Supreme Court, Mr. Saqib Nisar, to expedite the issue of reconstruction in Balakot New City. So, sir, if you could kindly share your experience
the earthquake with us, and how exactly were you able to convince the legal system to actually expedite this very important reconstruction? शिराज साहब, आप चाहें तो उर्दू में बात कर सकते हैं। जी, मैं इंग्लिश में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि शायद एक और दो शायद लोग ना समझ सकें। Both you can understand some Urdu. I see that in the audience everybody can understand. हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम उर्दू में बोल सकते हैं। कुछ गड़बड़ होगा कभी-कभी। और ऑडियंस में सूर्यनारायण श्रेष्ठ जी भी हैं, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। Wonderful. So Mabra, you can continue in Urdu. ठीक है। तो डॉक्टर शराज साहब हैं, क्योंकि आई डोंट नो उनको मेरी अगर आवाज आ रही है। डॉक्टर शिराज साहब अगर अनम्यूट कर दे अपना माइक काइंडली। मैं सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपकी कोशिशों को सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। सन 2005 के ज़लज़ले में जो सबसे अफसोसनाक पहलू जो इस वक्त तक सामने आया है, मैं उस पर अपनी गुजारिशात पेश करूंगा। सन 2005 के ज़लज़ले के बाद 15 साल गुजरने के बावजूद जो सबसे काबिल अफसोस बात है, रिहेबिलिटेशन का काम इस वक्त तक मेरे नजदीक 90% काम रिहेबिलिटेशन का नहीं हुआ। मैंने इस मायूसी को देख करके इसमें ईरा और पीरा के इदारे भी बने, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व हुई, लेकिन 15 साल गुजरने के बावजूद आज तक रिहेबिलिटेशन का काम पूरे डिस्ट्रिक्ट मानसरा में, नॉट इन बालाकोट सिटी बकराल सिटी, बल्कि पूरा बालाकोट कान वैली और डिस्ट्रिक्ट मानसरा में जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उस पर अभी तक 1% भी काम शुरू नहीं हुआ। तो मैंने 29 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया, जिसपे 27 नवंबर 2017 को पहली हमारी समाअत हुई और अल्लाह के फजल करम से 25 अप्रैल 2018 को चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अपने दो सीनियर जजेस समेत मानसरा तशरीफ लाए। सबसे पहले उन्होंने ओल्ड बालाकोट सिटी का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने न्यू बकराल सिटी का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने मानसरा किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल का दौरा किया और अपने उस दौरे में उन्होंने ईरा और पीरा के तमाम अफसरान को कहा कि 15 साल गुजरने के बावजूद मैंने बालाकोट सिटी में, न्यू बालाकोट सिटी, ओल्ड बालाकोट सिटी में रिहेबिलिटेशन का काम जो मुकम्मल होना था, मुझे उसको देखकर बड़ा दुख हुआ कि अभी तक आपने 1% काम भी शुरू नहीं किया। हत्ता कि बालाकोट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो गेटवे है कागान वैली का, 15 साल में वो अस्पताल भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो उसमें हमने चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले उनको से ये दावत दी कि वो अपनी आंखों से आकर देखें कि बालाकोट ओल्ड सिटी और न्यू सिटी में ईरा और पीरा की प्रैक्टिकल कारकर्दगी क्या है। आप सुनकर हैरान होंगे कि जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब का मानसरे आना, मैं समझता हूँ मानसरा डिस्ट्रिक्ट की 70 साल तारीख में पूरे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और बेंच को मुअत्तल करके उन्होंने कहा कि मैं मानसरा जाकर इन दुखी लोगों की हालत हजार खुद देखूंगा। लेकिन जिस वक्त वो चीफ जस्टिस साहब अपने सीनियर जजेस समेत मानसरा तशरीफ लाए, उस वक्त हमारी तमाम डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डीआईजी सारे मौजूद थे। तो वापसी पर जिस वक्त साकर अपना दौरा मुकम्मल किया, तो ये उनके अल्फाज थे जो उन्हें ईरा और पीरा के ऑफिसर्स को मेरी मौजूदगी में कहे। उन्होंने कहा कि what I have seen and felt, I am very much disappointed by your, everybody will be taken to task, everybody from top to bottom। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से
ये चीज उजागर करूंगा कि $3 अरब बैरून मुल्क से इमदाद आई है जो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के पास इस वक्त मौजूद है। ये $3 अरब वो इमदाद है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने और बैरून मुल्क जो हमारे पड़ोसी ममालिक है उन्होंने दी है। अगर ये $3 अरब प्रैक्टिकली सही खर्च होते तो इस वक्त तक 10 बालाकोट सिटी आबाद हो सकते थे। लेकिन शौमी किस्मत 15 सालों में न तो किसी सूबाई हुकूमत ने, न किसी मरकजी हुकूमत ने और न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम करना था आज तक मुंतसरीन आबाद नहीं हो सके। और अब सबसे अफसोसनाक मुकाम यह है कि कागान वैली में जहां 14,500 अमवात हुई हैं और 2500 अमवात तहसील मानसरा और तहसील बालाकोट तहसील उगी में हुई है, 17,000 जनाजे उठने के बाद आज भी 70% हमारे तालीमी इदारे नामुकम्मल हैं। बच्चे खुले आसमानों तले बैठकर पढ़ रहे हैं और जो लोगों को प्लाट मिलने थे 15 सालों में लोगों को प्लाट भी नहीं मिल सके और वो इस वक्त पुराने शेल्टर हाउसों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा मुतालबा चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से ये होगा कि जो फैसला चीफ जस्टिस साकिब नसाब साहब करके गए हैं बालाकोट सिटी और बालाकोट ओल्ड सिटी और बालाकोट न्यू सिटी के बारे में जो फैसला करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब नसाब साहब गए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी उनसे दरमंदाना दरख्वास्त है, क्योंकि उस फैसले में फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस, फेडरल सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, चीफ सेक्रेटरी केपीके, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्टर जनरल ईरा, इन्होंने ये लिख कर दिया था कि हम 2.5 साल के अंदर ये अपना जितना बालाकोट सिटी का और कागान वैली में और डिस्ट्रिक्ट मानसरा में जो काम रहता है इसको मुकम्मल करेंगे। लेकिन आज 12-13 महीने गुजरने के बावजूद भी ग्राउंड पे कोई काम भी नहीं हुआ और ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की भी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी। आज अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे सुओ मोटो एक्शन ले ले तो मुझे दावे से मैं कह सकता हूं कि सूबाई हुकूमत के और मरकजी हुकूमत के तमाम अफसरान कटहरे में होंगे जिन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन की है और प्रैक्टिकली न बालाकोट सिटी ओल्ड सिटी मुकम्मल हुआ, न बालाकोट की न्यू सिटी मुकम्मल हुआ, न तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बना, न हमारे तालीमी इदारे मुकम्मल हुए और पूरी कागान वैली की 100 मील की वैली में कोई BHU, कोई अस्पताल, इसमें ना जिंदगी की कोई सहूलत मैसर नहीं है। तो मेरी सबसे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये दरख्वास्त होगी कि जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो सुओ मोटो एक्शन लें, जो पेंडिंग फैसला हमारा पड़ा हुआ है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। यही बालाकोट के लोगों के साथ सबसे बड़ा एहसान होगा। यहाँ में एक और भी गुजारिश करता चलूं, अगर लोगों को उस वक्त 2005 में जल्जला हुआ था, 3-4 सालों के अंदर अगर लोगों को प्लाट मिल जाते तो वो उस वक्त 2-3 लाख में अपना मकान 5 मरले या 10 मरले का मकान 2 से 5 लाख में मुकम्मल कर सकते थे। लेकिन आज 15 साल बाद उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक और लॉलीपॉप दिया गया है कि हम आपको मकान देंगे। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि 50 लाख रुपए में कंस्ट्रक्शन मटीरियल की कीमतें 4 गुना बढ़ चुकी हैं, महंगाई 4 गुना बढ़ चुकी है। अब तो ये लोग 50-60 लाख में अपना घर तामीर नहीं कर सकते। इस नेग्लिजेंस का कौन जिम्मेदार होगा? तो मेरी ये ख्वाहिश होगी, ये तो मुझे आज भी सूबाई और मरकजी हुकूमतों से कोई भी खैर की तवक्को नहीं। हमें इस वक्त उम्मीद है सिर्फ और सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो सुप्रीम अगर जस्टिस गुलजार अहमद साहब इस पर एक्शन लें तो सारी चीज़ उन पर वाज़ेह हो जाएगी कि ईरा और पीरा की कारकर्दगी क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी क्या है, मरकजी और सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी क्या है। मेरी यही इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच राज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल सही बात की। बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है और अभी तक लोगों को जस्टिस या कोई भी मिनट नहीं मिली गवर्नमेंट के हवाले से। मैं मूव ऑन करना चाहूँगी, लेकिन मैं बस पूछना चाही थी, मैं देख रही हूँ कि हमारे कुछ नए पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैंने पूछना था कि कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स या मीडिया की तरफ से अब कोई प्रेजेंट है? जी हाँ जी, सॉरी कौन है, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा कि पार्टिसिपेंट। डॉक्टर फरीद साहब है, अब्दुल कुद्दूस साहब है। अच्छा, और ठीक है, चलिए। जुल्फिकार साहब भी हैं एक्सप्रेस से। जी बिल्कुल, जुल्फिकार साहब भी हैं। अच्छा, जुल्फिकार साहब भी हैं, ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू। तो डॉक्टर फरीद आपसे शुरुआत करते हैं। डॉक्टर फरीद जर्नलिस्ट हैं।
तो डॉक्टर फरीद, आप प्लीज हमें अपने बताएं कि जो आपने क्या देखा 2005 अर्थक्वेक्स में, और अभी आपके क्या ख्याल है कि कितना कुछ हुआ है, कितना काम रहता है। आपकी कोई अपनी कोई स्टोरी आप सुनाना चाहें जो आपको लगे कि अच्छे तरीके से बताती है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में अभी। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बारी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, पतन ऑर्गेनाइजेशन का और डोनर का, हमारे साथ जो बैठे हुए हमारे दोस्त, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमें इस 8 अक्टूबर के हवाले से हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो यहाँ पर बहुत सारे मसाइल थे, इन पे अभी बात की है हमारे शिराज महमूद कुरैशी साहब ने। तो मैं ये कहना चाहूंगा, 15 साल से लिख लिख कर हमारा तो काम होता है आर्टिकल लिखना, खबरें लिखना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अब जो हो रहा है उसमें भी लिखते हैं अच्छा हो रहा है। तो ये एक अलग दास्तान है। ज़लज़ले से ज्यादा बड़ी दास्तान ये है कि 15 साल के बाद भी आज मैं बालाकोट में बैठा हूँ, अभी बालाकोट सिटी नहीं बन सका। और इसकी बड़ी वजह हुकूमती नाअहली, पहले पीपल्स पार्टी की, पहले मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, और मई के महीने में 2006 में जब वो संगे बुनियाद रखा था बकरियाल सिटी का, उस वक्त मैं भी वहां पर था, रिपोर्टर था वहां पर, मैंने भी तस्वीरें खींची थी और ये सारी डिटेल सुनी थी और तकरीरें सुनी थी। उसके बाद जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत चली गई तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद पता चला कि ये एरा से ही पता चला था कि ये जो एरा के लिए टोटल मुख्तस रकम थी 34 अरब रुपए। अब 34 अरब में से 18 अरब इन्होंने कंस्ट्रक्शन पे लगाने थे और बाकी जो रकम थी वो जमीन की खरीदारी पे खर्च होनी थी। जमीन खरीदी गई वो 11,500 किनाल जो है वो अभी भी एरा और सूबाई गवर्नमेंट के नाम पे इंतकाल पड़ा हुआ है। जमीन तो मौजूद है, एरा ने वहां पर काम शुरू किया, प्लाट तो नहीं बन सके, अलबत्ता सड़कें और कुछ काम जो बुनियादी नौयत का होता है वो कुछ हुआ। उसके बाद कोई झगड़ा हुआ, क्या हुआ, उसके बाद एरा वाले तो चले गए। लेकिन उसके बाद जो हुकूमत आई थी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने न सिर्फ मुतासिरीन जलजला के लिए या जलजला के जो मुतासिरीन के लिए जो काम थे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो तो सिरे से किए ही नहीं, उनका फंड उठा के BISP प्रोग्राम में लगा दिया गया इस्लामाबाद। और उसके बाद जो बाकी कुछ फंड बचता था, कोई गालिबन ये अभी बताया उन्होंने 95 करोड़ इन्होंने भेज दिया नवाब शाह, लारकाना, सखर और मुल्तान। उस वक्त पहले वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी साहब। उसके बाद परवेज अशरफ साहब आए तो उन्होंने भी एरा में जो फंड पड़ा हुआ था, चूंकि उसका अकाउंट तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता है, वहां से उठा के वहां लगा दिए। फिर हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, पहले वाली गवर्नमेंट, उसके बाद पीपल्स पार्टी की, उसके बाद अमीर हैदर होती वाली, और अभी जो पिछले 5 साल से तो माशाल्लाह तब्दीली सरकार है। लेकिन इन 15 सालों में हमने कोई तब्दीली नहीं देखी, अभी तक वैसे ही है। बाजार आपको बने हुए नजर आते हैं, लोगों ने घर खुद बनाए, और जहां हम लोग रात को रहते हैं वो शेल्टर हैं जो सऊदी अरब की मदद से प्री फेब्रिकेटेड बनाकर दिए गए थे। तो इनमें जिंदगी के जो इतने साल गुजारना है, मेरा ख्याल है बहुत। मेरा एक छोटा बच्चा है 14 साल का, क्योंकि मेरे 3 बच्चे उस वक्त फौत हो गए थे जलजला में। तो उसके बाद जो बच्चा जो 14 साल का है वो मुझसे पूछता होता है, अब्बू वो यहाँ पर कोई शहरों में बड़े शहर बसते बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बना हुआ, हम शेल्टरों में क्यों रह रहे हैं। तो मैंने कहा आप दुआ करें बेटा कि ये जो वक्त के बादशाह है इनको मौत आए, क्योंकि जब ये मरेंगे तो ये हमारा ख्याल रखेंगे, वरना ये नहीं रखते। तो जिम्नन इससे बात याद आई कि फंड्स जो आते हैं एरा के पास, अभी कह रहे हैं कि हम कोई एक नया लोलीपॉप दिया है कि बकरियाल सिटी बनाएंगे। 15 सालों में नहीं बना तो मैं नहीं समझता अगले 15-20 सालों में मजीद बन जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को कुछ प्लाटों का वो जो मुआवजा आता है, जो पैसे वहां पर दिए थे बकरियाल सिटी के लिए 34 अरब, उसमें से 30 अरब भी अगर तकसीम करें रेड जोन के लोगों पर, इनकी तादाद है 5500, और टोटल जो 500 उधर से डाले हुए उन्होंने, जो न्यू सिटी बन रहा है वहां भी कुछ इफेक्टिव थे, तो 6000 तादाद बनती है। फिर दूसरी बात यह कि खान साहब का बड़ा अच्छा विजन है, वो मुल्क में 50 लाख घर बनाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि 50 लाख घर बनाने से पहले 6000 घर तो बना दें, कि कम से कम हम तो ये कहेंगे माशाल्लाह आपने काम किया। तो मैं इसी के साथ ही इजाजत चाहूंगा, बाकी दोस्तों से आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरीद, आपने शेयर किया। मैं बहुत सॉरी, मेरी डीपेस्ट सिंपैथीज हैं आपके साथ और कंडोलेंसेस। ये बहुत ही लफ्ज नहीं है बयान करने के लिए, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ शेयर किया ये सब कुछ। क्वेश्चंस हैं, लेकिन आई थिंक ये हम प्रोग्राम के एंड पे हम पूछ लेंगे। मेरा आपसे 2 क्वेश्चन अब आपने जो कहा है वो निकल आए, तो हम प्रोग्राम के एंड पे क्वेश्चन एंड आंसर्स देंगे, तो मैं आपसे लाजमी तब पूछ लूंगी। अब मैं बट थैंक यू सो मच। अब मैं जाना चाहूंगी डॉक्टर अब्दुल कदूस, who is the president of Balakot Press Club. सर आप हैं ना, अभी मुझे बताया गया था आप हैं।
डॉक्टर फरीद साहब आपके पास बैठे हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब? मेरे साथ जुल्फिकार साहब बैठे हैं, अभी जुल्फिकार साहब ही हमारे सीनियर साथी हैं। अच्छा ठीक है, तो सॉरी अभी नहीं है वो, तो मिस्टर जुल्फिकार अली, अगर वो बात करते हैं, ही इज अ रिपोर्टर विद एक्सप्रेस ट्रिब्यून एंड डेली आग, सॉरी। आपके साथ बैठे हैं, उनके पास है माइक? हाँ, उनका अपना माइक लगा हुआ है। अच्छा, वो पार्टिसिपेंट्स में हैं, वो मुझे जी बिल्कुल, बिल्कुल है। सामने शो हो रहे हैं। जुल्फिकार साहब आप बात करें। मुझे नहीं आ रही वो, बस मुझे बहुत लिमिटेड 2-3 लोगों की आ रही है। वेलकम मिस्टर जुल्फिकार अली। तो आपसे भी यही चंद सवालात हैं कि जुल्फिकार आप साहब म्यूट हटा दे काइंडली। जी उनका म्यूट है, म्यूट हटा दे तब बात कर सकते हैं सर। हाँ वो हट गया, आप बात कर सकते हैं। हाँ प्लीज आप हटा दें, लेकिन अगर जो कोई बात नहीं कर रहा, अगर वो काइंडली म्यूट ही रखें, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा पीछे आवाज आती है और फिर आवाज लॉस्ट हो जाती है। जी अली साहब, जुल्फिकार अली साहब, जी आपसे भी यही सवाल है कि आपके ख्याल में आपकी जर्नलिस्टिक जो करियर में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या चेंजेस हुई हैं, क्या अगर कोई आप स्टोरी शेयर करना चाहते हैं जो हमें शायद जो हमें पता है अर्थक्वेक के बारे में, उससे शायद कुछ हट के जो ऑन द ग्राउंड जैसे जो स्टोरीज होती हैं, तो आप प्लीज अगर शेयर करना चाहें हमारे साथ। थैंक यू जी। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और पतन ऑर्गेनाइजेशन का कि जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया हमें मिल बैठने का, और ख़ास तौर पर जो तहसील बालाकोट ज़लज़ला से मुतासरा तहसील है उसके मसाइल शेयर करने का। पहले तो शुक्रिया आपका। जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद फरीद साहब जो हमारे बालाकोट के सीनियर साथी हैं, उन्होंने एक तफसील से इस इशू पर रोशनी डाली, में भी इनकी बात को आगे जारी रखते हुए इजाफा करना चाहूँगा कि देखें साल 2005 में यहाँ पर ज़लज़ला आया, तो इस ज़लज़ले में ज़िला मानसरा में जो शहदा थे उनकी तादाद है 17,500, जिसमें से 14,000 का तल्लुक तहसील बालाकोट से है। तो आप तबाही का अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ किस कदर तबाही आई। ठीक है, तहसील बालाकोट का जो 97% इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हुआ इस ज़लज़ला में। तो उसके बाद जब बाली का काम शुरू हुआ तो हुकूमत ने जो बालाकोट और गरलाट दो यूनियन काउंसिल्स हैं, इनको रेड जोन डिक्लेयर किया कि यहाँ जो है मुस्तकबिल में भी ऐसे ख़तरात मौजूद हैं कि कोई बड़ा ज़लज़ला, कोई बड़ा सानिया हो सकता है जिससे मज़ीद जानी जो नुकसान है उसका अंदेशा है। तो इसलिए उन्होंने ये जो बालाकोट और गरलाट शहर था इसको आबाद करने का मंसूबा बनाया न्यू बालाकोट सिटी के मकाम पर, जिसका जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि 2007 में जुलाई 2007 में बाकायदा जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब थे उन्होंने इफ्तिताह किया। लेकिन उसके बाद जो एरा इदारा था उन्होंने 2-3 साल तक तो इस जो न्यू बालाकोट सिटी का मंसूबा था इसको आगे बढ़ाया। ताहम तकरीबन इसको 10 साल होने को आए हैं कि ये मंसूबा बिल्कुल बंद है। चंद रोज़ कबल एक मीटिंग हुई थी जो हमारी मनसूबाबंदी की कायमा कमेटी है सेनेट की, उसमें तो उसमें ये इंकशाफ हुआ कि एरा ने साल 2010 के बाद न्यू बालाकोट सिटी के हवाले से कोई इजलास मुनक्किद ही नहीं किया। यानी कि 2010 तक तो इजलास मुनक्किद होते रहे हैं, लेकिन 2010 के बाद किसी किस्म का कोई इजलास न्यू बालाकोट सिटी के मुतालिक किया ही नहीं गया। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एरा इदारा है वो किस हद तक न्यू बालाकोट सिटी के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने में संजीदा है। तो 2 रोज़ कबल एक मीटिंग मज़ीद हुई जो हमारे एरा के चेयरमैन हैं जनरल नदीम साहब, उनके साथ जो बालाकोट का वफ़द था, उन्होंने अब यकीन दहानी करवाई है कि अब इंशाअल्लाह 2 माह के अंदर अंदर हम जो है न्यू बालाकोट सिटी पर पेशरफ़्त करेंगे, इस मंसूबे को आगे बढ़ाएँगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इन मंसूबे को हम मुकम्मल करेंगे। तो अगर न्यू बालाकोट सिटी से हट के भी हम बात करें, चूँकि तहसील बालाकोट जो है वो 12 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल है। यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों की तादाद में स्कूल हैं जो अभी तामीर के मुंतज़िर हैं। हम देखें तो सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर, चूँकि ये बर्फ़ानी इलाका है, यहाँ पर 3 से 4 फुट तक बर्फ़ पड़ती है, तो जो स्कूल के बच्चे होते हैं या टीचर्स होते हैं उनको बहुत परेशानी का सामना होता है बर्फ़बारी के मौसम में कि वो किस तरह अपना दर्स और तदरीस का निज़ाम है उसको आगे चलाएँ। तो इसी तरह जो बहुत से और मसाइल भी हैं, BHUs हैं, वो भी तामीर के मुंतज़िर हैं। हम मशकूर हैं शराज महमूद कुरैशी साहब के
कि जिन्होंने ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में गए और चीफ जस्टिस साहब थे जो साबिक निसार साहब, उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया इस पर। खुद उन्होंने बालाकोट का विजिट भी किया, ये भी मौजूद थे, हम भी यहाँ मौजूद थे। फिर उन्होंने अपनी जजमेंट में हुकूमत को ये आर्डर भी किया कि आप जो न्यू बालाकोट सिटी का मंसूबा है इसको आगे बढ़ाते हुए पाया तकमील तक पहुँचाएँ। ताहम उसके बाद भी अभी तक इस पर कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। हम भी मुंतज़िर हैं, देखते हैं कल जिस तरह बरसी है यहाँ भी मनाई जाएगी, बाकी जो एरिया अफेक्टेड है वहाँ भी मनाई जाएगी। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। फिल वक्त तो जो प्रोग्रेस है वो ना होने के बराबर है यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब मैं सॉरी, मैं एक सेकंड में देखना चाह रही हूँ कि पार्टिसिपेंट्स कौन है। जी आप जी पार्टिसिपेंट्स, नीचे पार्टिसिपेंट का टैब है, उस पर क्लिक कर दें तो आपको शो हो जाएंगे नीचे बार जो आ रही है। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से डॉक्टर राम और इस्माइल शाह साहब हमारे साथ हैं। इस्माइल शाह साहब हैं। अच्छा जी जी हमारे साथ थे जो एक्स नाजिम थे, लेकिन उनका थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, अब वो डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से जी अच्छा सॉरी, यूशी साहब की वीडियो है, अगर आप कहें तो मैं चलवा दूं उनकी। हाँ आई थिंक अगर हम वो पहले चला दें तो वो अच्छा रहेगा, तब तक मैं भी पार्टिसिपेंट लिस्ट थोड़ी अपडेट कर देती हूँ। मैडम यूशी साहब का जरा अगर आप इंट्रोडक्शन जी मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। रेडी है फिर? जी जी ठीक है, अच्छा ठीक है। So unfortunately Mr. Yoshinobu Fukasawa wasn't able to join, वो join नहीं कर पाए, लेकिन मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो वो born in 1957 Japan. Currently he is working as director overseas business department Nishi Nippon Railway Company, Japan. In 2006 he founded International Network of Telling Live Lessons from Disaster, Telnet, and organized 2010 Telnet Forum and 2020 Telnet Forum both in Kobe, Japan. तो अब हम आपके लिए वीडियो चलाना चाहेंगे। स्मॉल मैसेज है उनकी तरफ से, एक सेकंड हम शेयर हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही बाय द वे। जी मैं इसको टेस्ट करता हूँ, आप किसी और से बात। जी अभी हमारे इस्माइल शाह साहब से बात कर लें।
जी ठीक है, एक सेकेंड जी। इस्माइल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी सर। जी तो आप प्लीज अगर, हाँ सॉरी, मेरे screen का हो गया। सॉरी सईद साहब, मेरी स्क्रीन अभी तक शेयर हो रही है या? अच्छा, एनीवेज, सॉरी, ये मैं बस खोल रही हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। वालेकुम जी तो सलाम, थैंक यू। जी जी। जी तो काइंडली अगर आप भी हमें थोड़ा सा बता सकें कि आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या, आपने अर्थक्वेक के दौरान क्या देखा, और आज आपको क्या लगता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, और किसको हम क्या अभी क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं कि हम इंश्योर करें कि प्रोग्रेस चलती रहे, या जो नहीं चली, जो चीज़ें अभी तक इतनी नामुकम्मल हैं, उनको किस तरह हम गवर्नमेंट और कोर्ट्स को पुश कर सकते हैं कि इसको हम प्रेसिडेंस दी जाए। जी सबसे पहले तो पटन ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया जिन्होंने इस मीटिंग में मुझे शामिल किया। मैंने आपके पटन ऑर्गेनाइजेशन के तारक रहीम हैं, उनके साथ सर्वे भी किया बालाकोट के कुछ एरियाज में। तो जहाँ तक बात है 2005 के ज़लज़ले की, तो अभी 15 साल गुजर चुके हैं उसको। तो सबसे पहले जब 2005 में ज़लज़ला आया तो बड़ी तबाही हुई। ज़लज़ले में लोगों के मकान गए, जानी और माली नुकसान हुआ। उस पे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन भी आई, उनमें यूनिसेफ थी, रेड क्रॉस थी, और भी बहुत सारी तंजीमें थी जिन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन वो काम नहीं हो सका जो उन्हें करना चाहिए था। कि ना हेल्थ के हवाले से उसमें कुछ काम हुआ, ना लोगों के रोजगार के हवाले से, ना उनके मकान के हवाले से कुछ सही नहीं हुआ। सब पैसा ही इधर उधर ही गायब हुआ है। काफी सारा पैसा आया था, बहुत सारी तंजीमों को भी मिला जो हजम हो गया, पता नहीं किधर गया किधर नहीं गया, इसका किसी को नहीं पता। लेकिन शिराज महमूद कुरैशी साहब ने इसमें काफ़ी सारी डिटेल भी आपको बताई हैं। हम इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो इसमें हम लोगों की खुद गलती है, हमारे लोगों की गलती है इसमें। तो जहाँ तक बात रही न्यू बालाकोट सिटी की, तो इसमें मैं काइंडली ये कुछ चीज़ें करेक्ट करना चाहता हूँ। इन्होंने बीच में पार्टियों को भी ब्लेम किया है। सॉरी, मैं इस टॉपिक पे नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इसका जो फंड आया था तकरीबन 66 अरब रुपए आया था न्यू बालाकोट सिटी का। 66 अरब आया था। तो जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो वहां पे कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ था। उसके बाद पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई तो 66 अरब रुपया फंड आया था, जो सारा चला गया, शिफ्ट हो गया यहाँ से। यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान अपने आबाई गांव के लिए वहां पे शिफ्ट कर लिया। तो उसके बाद फिर इराक मैं समझता हूँ कि इराक ने तो बिल्कुल यहाँ पे जो काम किए हैं वो वैसी काम किए हैं, कुछ खास काम नहीं किए। लेकिन जो न्यू बालाकोट सिटी का जो काम था वो बिल्कुल उन्होंने उस पर कोई भी मतलब इस तरह की कोई चीज़ हिकमत अमली तैयार ही नहीं की, कोई चीज़ उस पर की नहीं। वो 2010 के बाद वो भाई ने बताया था, जुल्फिकार भाई ने, कि कोई मीटिंग उनकी हुई नहीं। उससे पहले भी जो मीटिंग्स हुई उसमें कुछ खास चीजें सामने नहीं आई। तो इसमें साकब नसार काइंडली मैं ये चीजें बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा कि इसमें साकब नसार कुछ कर सकते हैं ना और कुछ, क्योंकि बालाकोट सिटी का जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी वैसी है, उसका भी कुछ नहीं है। जो आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो बिल्डिंगें एनजीओज वगैरह ने बनाई हैं वो इतनी मजबूत और इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अल्लाह ना करे कि एक और इस तरह को कोई वाकया आ जाए तो वो तबाह हो जाएंगी। तो जो मेन बात बालाकोट की नहीं है, बालाकोट के इर्द गिर्द के इलाके भी हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तबाही बालाकोट में हुई है। आप देखें आज़ाद कश्मीर में भी कितनी तबाही हुई, उसके साथ जो मुल्का गांव थे उनमें कितनी तबाही हुई। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ पे जो फ्लड की वजह से डिजास्टर आते हैं उनके लिए भी कोई हिकमत अमली न गवर्नमेंट ने, किसी गवर्नमेंट ने भी नहीं की, जो आज गवर्नमेंट है इसने भी नहीं की।
ये मेन चीज है कि फ्लड जो है इस मरतबे भी फ्लड आए हैं, उसमें कई मकानात वगैरह नरा खागान जरैद पारस मांडरी इस साइड पे तबाह हुए हैं, जिनमें जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। तो रही बात एनजीओज की, तो काफी सारी एनजीओज आई हैं, उन्होंने काम भी किया, ये नहीं कहता काम नहीं किया, काम भी किया है, लेकिन आई थिंक 100 में से 20% वर्क हुआ है, बाकी काम नहीं हो सका। इसकी वजह शायद मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी एनजीओज के साथ काम भी किया है, रेड क्रॉस के साथ भी काम किया है मैंने, हैंडीकैप के साथ भी काम किया है, आई थिंक ये फॉरेन वो है, फॉरेन एनजीओज के साथ भी काम किया है। इसके अलावा और छोटी छोटी जो तंजीमें थी उनके साथ भी काम किया है। यहाँ हेल्थ की तो आप बात ही ना करें, हेल्थ का तो कोई निज़ाम सिस्टम ही नहीं है। तारक रहीम के साथ मैंने सर्वे भी किया, वहाँ आपके पास रिपोर्ट भी मौजूद होगी। आप पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाएं तो लोगों को बहुत मसाइल हैं, ऐसी एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, और दूसरे मुख्तलिफ मसले हैं। मकानात जो यहाँ पे जो चेक जल्जले के दौरान आई थिंक मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है, 1 लाख ख्याल से फेज 1 में मिले थे, जो बिल्कुल तबाह हो गए थे, और जो वैसी को क्रैक वगैरह जिन बिल्डिंग में थी आई थिंक उनको 25 to 50,000 रुपीज मिले थे। वो भी अभी तक आधे लोगों को पैसे नहीं मिले, आधे लोगों को वो चेक भी अभी तक नहीं मिले। तो जहाँ रही बात आज आज की, तो आज आप देख लें महंगाई भी कितनी होगी है, हर चीज में इजाफा ही हो रहा है। तो लोग किस तरह ये 1 लाख 2 लाख या 3 लाख में किस तरह अपने घर बनाएंगे, किस तरह? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। बालाकोट को इस वक्त रीबिल्ड करना है अगर, तो पहले आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे तो तब वो होगा। अभी भी वो रेड जोन है, क्योंकि आप देखें कि अभी भी आफ्टर शॉक्स थोड़े थोड़े टाइम से आते हैं यहाँ पे। लेकिन जब इसको मेरे ख्याल से बाहर से कुछ फॉरनर आए थे, वो इस एरिया को रेड जोन करार दे के गए थे, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पे मकान बनाए जा रहे हैं, ऊपर नीचे बनाए जा रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि जो न्यू बालाकोट सिटी है उधर लोगों को प्लॉट क्यों नहीं मिले, उधर फंड क्यों नहीं लगा, अभी तक क्यों नहीं वो तमीर हो सकी। उसकी मेन वजह है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना काम करती है और चली जाती है, पैसे खाती है और चली जाती है, आगे इन्होंने अपने चमचे रखे हुए हैं। मैं काइंडली बारी साहब से इस बात में इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काम एक तरीके से ही हो सकता है। मैं सीधी इस पर आप प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप ये रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से रिक्वेस्ट करें कि आप बालाकोट के इन मसाइल को हल करें जल्द अज जल्द। हम ना पीटीआई को ब्लेम करते हैं ना किसी और पार्टी को, क्योंकि 5 साल तो पीटीआई पहले लगा कि अभी फेडरल गवर्नमेंट में आई है, अभी 2.5 साल हुए हैं, हम किस तरह उनको ब्लेम कर सकते हैं कि वो ये करें और वो करें। इन पकड़ना उन लोगों के अदलिया ने कि जो पहले 66 अरब रुपए यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, जब एरा थी यहाँ पे 66 अरब रुपए पीपल पार्टी के दौर में यूसुफ रजा गिलानी ने जो यहाँ से मुल्तान शिफ्ट किए हैं। तो इस ये जो 66 अरब का जिक्र ये हमारे एमएनए हैं इधर हमारे हल्के के साले मोहम्मद खान साहब ने ये उधर पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र किया है, लेकिन कुछ किसी के कान में जू ही नहीं रेंगती, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। इधर लोगों के ना मसाइल का कोई परवाह है, ना इधर लोगों की हेल्थ की कोई परवाह है। जॉब्स तो इधर बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जॉब्स का एजुकेशन है, लोग यहाँ से मनसेरा यूनिवर्सिटी हज़ारा यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते हैं, लेकिन जब डिग्री कंप्लीट होती है तो जॉब्स के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं। यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, 15-20 हज़ार की जॉब करते हैं, किसी तरह अपने घर को चलाने वाला सिस्टम उन्होंने किया हुआ। 15-20 हज़ार में लोगों के लिए जॉब्स नहीं है। यहाँ रेस्क्यू 112 नहीं है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं है, यहाँ पे अस्पताल नहीं है। अभी 15 साल हो गए हैं, अभी भी वो कंस्ट्रक्शन का जो हॉस्पिटल है मेन हॉस्पिटल बालाकोट की, उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ। तो मेरी
Hello? Hello? हेलो इस्माइल साहब, आपकी आवाज थोड़ी आई थिंक या मेरी तरफ से प्रॉब्लम है या आपका कैमरा इंटरनेट इशू है इस्माइल साहब का, इंटरनेट अच्छा कनेक्टिविटी ठीक का है, इशू है। चलिए बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, थैंक यू, आपकी वैल्यूएबल इनपुट थी। हेलो, आई थिंक हम नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि आई थिंक वैसे भी वो मेरा भी अभी लेस फ्रीज हुआ है थैंकफुली। मैं हाँ, आई थिंक हम नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ अभी चलें। हैदर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया हमें। मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी टू स्पीक। एक सेकंड में देख रही हूँ कौन कौन है जी। अच्छा, मिस्टर अमोद दीक्षित सर, आप हैं हमारे साथ? आप अपना माइक प्लीज अनम्यूट कर दें ताकि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकूं। Okay. Ji, Assalamu alaikum, sir. Thank you for joining. So, Dr. Mohd Mai Dakshit is the General Secretary of National Society for Earthquake Technology Nepal, NSET, the Chairperson of Asian Disaster Reduction and Response Network, ADRRN, Professor at Institute of Mountain Hazards and Environment, and he worked in the aftermath of this earthquake that we are talking about and he helped consult on how to make resistant housing, earthquake resistant housing for the residents of Balakot. Obviously sir, आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर यही बात हो रही है कि इवन दो आप जैसे लोगों की एक्सपर्टीज भी ली गई, लेकिन ऑब्वियसली एक तो ना हाउसेस बन रहे हैं और जो बन भी रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो एक और अर्थक्वेक शायद बर्दाश्त कर सकें। तो आप काइंडली कमेंट अपनी एक्सपीरियंसेस भी और अपनी इनसाइट्स पे भी आप प्लीज हमें शेयर करें, बट आप ये बता सकते हैं व्हाई डू यू थिंक कि इतने बड़े डिजास्टर होने के बावजूद ये क्यों नहीं जो एक व्हाई आरंट वी लर्निंग हमारी मिस्टेक से, व्हाई हम लर्न क्यों नहीं कर पाए कि अगर हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसिंग नहीं बनाएंगे तो ये फिर से एक रिपीट डिजास्टर होगा। Shall I start now? Yes, please sir, start. Assalamu alaikum सबको। I greet the organizers, dignitaries सब हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में। मैं सबको हेलो बोलता हूँ, ये स्पेशली सरवर वारी साहब को और राबिया बहन को जिन्होंने हमको ये बहुत बड़ा मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि फुकासावा सान भी यहाँ पर आने वाले थे, नहीं आ सके, दूसरी बात है, लेकिन मैं उनके साथ मैं भी ये टेलनेट में कुछ करीब हुआ करता था, अभी भी हूँ। तो पाकिस्तान में जब जलजला आया तो उसके 6 डे 7वें दिन 6वें 7वें दिन में मैं इस्लामाबाद पहुंच गया था। सबसे पहले मैं आई वर्क विथ द डार्ट टीम, अमेरिकन का जो डार्ट टीम है, डिजास्टर रिस्पांस टीम, उनके साथ में काम किया। फिर बाद में यूएनडीपी के साथ में, पाकिस्तानी यूएनडीपी के साथ में अर्ली रिकवरी में बाग और मुजफ्फराबाद में काम किया। और उसके बाद में एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल या आप कहें ये जनरल फारूक साहब के साथ में और जनरल नजीब साहब के साथ में, बाद में एरा के साथ में हमने 3 साल तक काम किया रिकंस्ट्रक्शन में। बेसिकली हमारी जिम्मेवारी थी ये कैपेसिटी इन्हांसमेंट, ट्रेनिंग वगैरह का लगाना, और काम किया हमने हैबिटेट के साथ में। 16 हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन सेंटर्स हुआ करते थे उस वक्त। पहले तो 4 बने थे, उसके बाद में 16 तक पहुंच गए। एंड हम लोग करीब तकरीबन 15 नेपाली तक वहां पर पहुंचे थे। सूर्य नारायण श्रेष्ठ जो अभी ऑडियंस में थे वो किसी काम से उनको जाना पड़ा, लेकिन वो लीडर थे हमारे, उन्होंने 3 साल तक वहाँ रहा। और मैं एक बात बता दूं कि
2 दफे उनकी शादी को पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि उनका उसी वक्त ट्रेनिंग करना था वहां पर, इसलिए उनका बहुत दिल ही वहां पाकिस्तान में है। अभी हमारे बहुत सारे जो हमारे इदारे में जो काम करते हैं उनका अभी हम लोग बहुत खुश से समझते हैं, ये याद करते हैं। अभी भी हम काम कर रहे हैं एनडीएमए के साथ में। हमारे एक प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम फॉर इन्हांसमेंट ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस, जिसके तहत हम काम कर रहे हैं अभी रेस्क्यू 1122 से, पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी के साथ में, और पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ में। कुछ पहले हम पाकिस्तान आर्मी के साथ में भी काम किया था। और अभी हम नेट यूनिवर्सिटी के साथ में हमारे कुछ ताल्लुकात हैं, जैसे कि हम नेट यूनिवर्सिटी के साथ में एनसेट ने ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ये सेक नाम का एक नेटवर्क खड़ा किया है, और इसकी कॉन्फ्रेंस हुआ करती है 2-2, 3-3 साल में। इस साल होने वाली थी, लेकिन ये कोविड के जरिए नहीं, नेक्स्ट ईयर होने वाली थी, तो हमने कुछ पोस्टपोन करना पड़ा। खैर, ये सब बैकग्राउंड है। चले द क्वेश्चन, who is responsible for collapsing, I mean the losses and these colossal losses? ये कौन जिम्मेवार है इसमें? अभी हमने बहुत सुना, अभी हमने जितने आपने बताया हमें, ये सिराज मोहम्मद कुरैशी साहब ने बोला, फरीद साहब ने बोला, इस्माइल साहब ने बोला, और जुल्फिकार अली साहब ने बोले, इन्होंने बालाकोट और उसके इर्द गिर्द के बारे में बोला। हमारा उतना ज्यादा बालाकोट के ही बारे में तो नहीं है, लेकिन हमने कश्मीर में, और अभी आप जिसको ये पख्तूनख्वा बोलते हैं, उसके और इलाके में हमने बहुत सारा काम किया वहां पर। और बहुत हमको बहुत फक्र है कि हमने वहां पर जा पाए, क्योंकि हमने वहां पर सीखा ज्यादा, बहुत कुछ सीखा। और देखा कि हमारा जो नेपाल में जो जिस किस्म का बिल्डिंग्स हैं, जो पाकिस्तान में पहाड़ियों में जिस किस्म की बिल्डिंग है, और शहरों में जिस किस्म की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग अभी क्या है कि वो नॉन इंजीनियर्ड बिल्डिंग बोलते हैं उनको। तो ये सारे के सारे इंजीनियर्ड बिल्डिंग नहीं है। तो मैं शुरू करना चाहता हूं किससे, कि किसको कहेंगे कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो चलिए, 1968 में एक इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर होते थे, निक एम्ब्रेसे नाम के, वो ग्रीक हैं, लेकिन बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, थे। कुछ चंद साल पहले उनकी ये देहांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि अर्थक्वेक्स डोंट किल पीपल, बिल्डिंग्स किल पीपल। अर्थक्वेक का लॉस ज्यादा से ज्यादा होता है जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जो घर बनाए जाते हैं, जो बिल्डिंग बनाए जाते हैं, वो कमजोर बिल्डिंग ही गिरते हैं, जो अच्छी तरह से बनाए गए बिल्डिंग नहीं गिरते। तो कौन बनाता है? हमारे यहाँ क्या है कि जितने सारे मकानात हैं जब बने हुए, विशेष ये स्पेशली हमारे रूरल एरिया में, हमारे पख्तूनख्वा में या कश्मीर में हमने देखा, और नेपाल में भी वही है, भारत इंडिया में भी वही है, बांग्लादेश में वही है, इंडोनेशिया में वही है, 85% से ज्यादा बिल्डिंग सब ये नॉन इंजीनियर हैं। और क्या है कि नॉन इंजीनियर बिल्डिंग को हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, हमारे इंजीनियर सब, चाहे पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, इनको पढ़ाया जाता है ये 30 मंजिला मकान अच्छी तरह से बना सकते हैं, लेकिन 3 मंजिला मकान बनाने में इनकी कुछ नहीं चलती है, क्योंकि हमारा मकान बनाते हैं को हमारे मिस्त्री सब बनाते हैं, हमारे वो जो जिनके पास कोई ये ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इसलिए। तो ये नॉन इंजीनियरिंग बिल्डिंग को हमने उनका अच्छा से हमने सीखा भी नहीं है, और उनको बनाने के लिए वैसे तो हमारे आपके तहसील में या आपके क्या बोलते हैं यूनियन काउंसिल में कुछ बिल्डिंग परमिट सिस्टम भी है, लेकिन हमारे यहाँ और ज्यादा से मुल्कों में जो बिल्डिंग परमिट सिस्टम है, उनका मेन क्या होता है मकसद, कि वो पैसे वसूल करें, लेकिन सेफ्टी इन्हांसमेंट में उनकी कोई नहीं रहती है। और
और दूसरी क्या बात है कि जो ये जिसका मकान बनना है उनको भी बहुत सारे बात मालूम नहीं होते हैं। ट्रेडिशनल जो नॉलेज थे हमारे, जो जैसे कि हमारे ये क्या बोलते हैं आपका धज्जी का मकान, वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट थे, लेकिन हम भूल गए हैं कैसे धज्जी का मकान बनाना चाहिए। हम भूल गए हैं कैसे हमारे परदादे सब अच्छी तरह से बनाते थे, उनको हम छोड़ दिए। मॉडर्निज्म के तहत हम लोग मॉडर्न होने के लिए हम जो बनाते हैं वो बहुत कमजोर बनाते हैं। और उसके ऊपर क्या है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके पास न उनका पास इल्म है, न उनके पास नॉलेज है, उनके पास उनके इंजीनियर को भी पढ़ाया भी नहीं जाता है, जो बिल्डिंग कोड बनती है उनको भी नहीं सिखाया जाता है। तो इसलिए हमारे जो ये नॉन इंजीनियर बिल्डिंग है उनको कोई देख नहीं रहा है। हमारा काम जो पाकिस्तान में हमने जो काम किया था वही हमने नॉन इंजीनियर बिल्डिंग के लिए जो कर रहा है उनका हमने ट्रेनिंग दिया। उनके लिए हमने तकरीबन कितने 26 मास्टर इंस्ट्रक्टर बनाए, जो कि शायद मेरे ख्याल से लगता है कि वो हमसे भी ज्यादा अच्छे थे। लेकिन अभी देखता हूँ कि मैं वो पाकिस्तान में बहुत सारे अभी नहीं काम कर रहे हैं, वो दूसरे दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं। और इरा के साथ में हमने लगभग हमने वैसे तो 3-4 साल तक काम किया, उसके बाद में हमने 7 साल के बाद में तो इरा के साथ नहीं काम किया, लेकिन उस वक्त तो हमने बहुत अच्छा काम किया जैसा लगा। लेकिन उसकी ये कंटिन्यूटी जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। अभी देखता हूँ क्या है कि जब मैं पाकिस्तान दाखिल हुआ 2005 साल में, उस वक्त और अभी को जब ये कंपेयर करता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे काम तो हुए हैं। जैसे कि रिसर्च पहले कुछ भी नहीं होती थी, अभी आपके पास पेशावर यूनिवर्सिटी में और नेट यूनिवर्सिटी में आपके पास शेक टेबल हैं, बहुत सारे इंजीनियर सब वो रिसर्च कर रहे हैं और कितने तो पीएचडी कर रहे हैं अपने किस्म के मकान में, अपने ये नॉन इंजीनियर बिल्डिंग में। लेकिन क्या है कि ये सब जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है कि जो हमारे बिल्डिंग परमिट देने वाले हैं, जो जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह हैं, उनको खुद ही पता नहीं है ज्यादातर को कि क्या करना चाहिए। वो सिर्फ देखते हैं, जो आप बिल्डिंग परमिट के लिए जाते हैं तो आपसे फी लेते हैं और उसके बाद में सिग्नेचर कर देते हैं, बिना देखे हुए कि ये बिल्डिंग जो बनने वाला है वो अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। और उसके बाद में बनाने के वक्त भी वो उतना सुपरवाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डिमांड भी नहीं है हमारे जनता के पास। हमारे जो आवाम हैं उनको भी उतना अवेयरनेस नहीं है कि वो पूछ सके हमारा बिल्डिंग क्यों कमजोर बन रहा है, हम कैसे इसको अच्छा बनाएं, क्यों हमको इंजीनियर सब ऐसा बनाने को मजबूर कर रहे हैं। तो वो उनके पास वो ये जो अवेयरनेस की कमी है। और दूसरी बात है, जो सप्लाई करने वाले हैं उनके लिए भी ये सब कुछ नहीं है। तो होता क्या है कि कोई देखने वाला नहीं है और कोई बताने वाला नहीं है। इस दौरान में क्या होता है, जो आप बोल रहे थे करप्शन का, चाहे वो फाइनेंशियल करप्शन हो, चाहे वो नॉट डूइंग द थिंग्स दैट इज टू बी डन, इस किस्म का करप्शन वहां पनपने लगता है और हम फिर वापस अपने स्क्वायर वन में पहुंच जाते हैं। ये किस्सा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये किस्सा हमारा नेपाल का भी है, ये किस्सा हमारा भारत का भी, इंडिया का भी है और बांग्लादेश का भी है, और हमारा श्रीलंका भी वही किस्सा है, अफगानिस्तान का भी वही किस्सा है। और मैं ADRRN का अभी चेयर हूँ और इसमें 20 मुल्कों में 56 ऐसे इदारे हैं, वो NGO हैं, सिविल सोसाइटी के इदारे हैं। और देखता हूँ कि एक ही किस्म के ये मसलात एक ही किस्म के हैं और इनको हमको एड्रेस करना जरूरी है। और दूसरी बात, आप हमको कुछ समय दे तो मैं बताऊं कि हमारा दो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो ये है कि हमारे जितने रिसोर्सेज होते हैं, स्पेशली द पॉलिटिशियंस, और जो इस सोसाइटी के ऊपर वाले आदमी होते हैं जो डिसीजन करते हैं, उनको कहाँ से लग जाता है कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो बहुत सारे रिसोर्सेस और टाइम और दिमाग किसमें खर्च हो जाता है कि अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन कब हो, कब आएगा जलजला, कैसे आएगा, कहाँ, ये हो नहीं सकता। अभी तक
साइंस इस काबिल नहीं है कि वो आपको बता सके कि अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन कर सके, लेकिन सबको यही धुन लगी रहती है कि हम कैसे इसको कर सके। जरूरी है जो साइंस है, जो टेक्निक है, जो इनोवेशन है, उसको हम हर एक घर तक ले जाएं, हमारे हर एक एवरी एवरी हाउस होल्ड में पहुंचा सके हम। इंजीनियरिंग की बात उसको लोकल लैंग्वेज में बता सके कि कैसे घर को अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। बहुत सारे को डरा देते हैं, कहते हैं कि इसमें ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा खर्चा होगा और ज्यादा ये होगा। अभी सरोवर बारी साहब ने बोला कि नहीं, सरोवर बारी नहीं, किसी कोई और इन्होंने बोला कि हाँ, पहाड़ियों के ऊपर स्टील ले जाना मुश्किल का काम है, सीमेंट ले जाना मुश्किल का काम है, पैसा ज्यादा आता है। लेकिन हमका नेपाल का हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि वहाँ ये सब ले जाने की जरूरत ही नहीं है। हम अच्छे घर बना सकते हैं जो हमारे परदादाओं ने बनाया है, जो इंडिजिनियस नॉलेज है, उसको यूज करके हम वहां पर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट घर अच्छी तरह से मकान बना सकते हैं। लेकिन उसमें हमारा ध्यान नहीं है। हमको चाहिए वही सरिया वाला घर चाहिए, वही सीमेंट वाला घर चाहिए। जो बनाते हैं वो बहुत कमजोर बनाते हैं। देखते देखते क्या होता है कि जितने आपने कहा कि पब्लिक हाउसेस क्यों कमजोर बन जाते हैं, तो उसमें एक है कि इसमें नॉलेज की भी कमी है, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं सिखाते हैं कैसे 3 मंजिले घर को कैसे बनाया जा सके, और किस किस्म के उनकी तो धुन चली रहती है कैसे यूरोप वाला घर बनाए, कैसे अमेरिका वाला घर बनाए, क्योंकि वहीं पर बाद में ये सब यूनिवर्सिटी आदि सब वहीं पर बन जाते हैं। हमारे यहाँ कैसा क्या चाहिए, इसका रिसर्च बहुत कम है, लोकलाइजेशन बहुत कम है। हमको लोकलाइजेशन में जाना पड़ेगा, और इसके लिए हमको क्या है कि उतना। और दूसरी बात यह है कि ये सब अभी तो ऐसे तो 15 साल हो गए, 15 साल हो गए, आज 2020 साल चल रहा है, 2005 साल में आया था ये जलजला। 15 साल में बहुत कुछ हो सकता था, बालाकोट भी बहुत अच्छा बच सकता था। अभी कोई जनाब ने बोला कि हम 15 बालाकोट बना सकते थे इस दौरान में। लेकिन क्या है कि ये सारे के सारे जो है, ये एक डिमांड क्रिएशन भी है और डिमांड को एड्रेसिंग की है, और ये कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है। और जो हमारी पॉलिसी है, वो पॉलिसी देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। और जो आपने अभी कहा, ये इसमें न सिर्फ बालाकोट की बात है, बहुत और दूसरे इलाके में भी ये जो पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी बन रही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमजोरी है। और इम्प्लीमेंटेशन में कमजोरी भी सब बदमाश, ये सब सिर्फ बदमाशी की बात नहीं है, ये कैपेसिटी की भी बात है। हमारा कैपेसिटी बहुत कम है। हमको अभी भी कोई गोरा जिस्म का आदमी आए और सिखाए तो हम काम करते हैं, लेकिन खुद अपने किस्म से हम आगे बढ़कर काम करने में हमको अच्छा नहीं लगता है, या हमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो ये कॉन्फिडेंस जगाना है। इस कॉन्फिडेंस, ये सब सारे के सारे हमारे साउथ एशियन मुल्कों की यही बात है। इसीलिए हमको एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। और एक लास्ट में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब बालाकोट की इतनी बड़ी बात हुई, देखिए ये रूरल रिकंस्ट्रक्शन जो हमने कहा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हमने बहुत सीखा। रूरल रिकंस्ट्रक्शन में काम करना अच्छा भी है। जब हमको याद है, हम मुजफ्फराबाद से भी ऊपर या बाग से होकर मुजफ्फराबाद जाते वक्त कितने इलाकों में हमने वहां पर काम किया, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन में सुपरविजन भी दी, वहां बहुत सारे अच्छे घर भी बने। देखिए गरीबों का मकान भी अच्छा बना हुआ है। लेकिन जब हम शहर में आते हैं, शहर के नजदीक आते हैं, तो वहां पर फिर घपला होना शुरू हो जाता है। वहां पर प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और अर्बन रिकंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम इन एशिया। हमारा काठमांडू अभी जलजला हुआ था 2015 साल में, हमने पाकिस्तान से जितना बात हमने सीखा वहां पर, वो हमने यहाँ पर लागू किया। हमको अभी बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो कुछ पाकिस्तान में सीखा उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और हमने गवर्नमेंट के साथ में काम करते हुए अभी हमारा जहां तक रूरल रिकंस्ट्रक्शन है वहां पर बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन अर्बन रिकंस्ट्रक्शन अभी भी काठमांडू में आप जाएं तो देखें कि वही हालात बालाकोट का है। यहाँ पर जितने मकान बिगड़े थे, अभी बहुत सारे बन नहीं पा रहे हैं। अभी भी वो उसको एक काठ की एक लकड़ी के जरिए उसको खड़ा रखा गया है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसके लिए वह हम कहते हैं कि हमको ये
हमको काम करना पड़ेगा साथ साथ में, हमको एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा और हमको एजुकेट बहुत ज़्यादा करना है अपने गवर्नमेंट की जो इदारे हैं, जितनी एजेंसियां हैं, उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। हमको सेफ्टी चाहिए, क्योंकि जो सेंदाई में जो सब ने साइन करके आए हैं, जिस सारे मुल्कात ने साइन करके आए हैं कि हम ये सेंदाई फ्रेमवर्क को लागू करेंगे, तो हमको डिमांड करना पड़ेगा कि चलो भाई, आपने साइन किया है, सिग्नेचर किया है, मिस्टर गवर्नमेंट, यू हैव टू कंप्लाई विद योर सिग्नेचर। एंड ये डिमांड हमको अपने जो आवाम है वो आवाम से निकलनी चाहिए। और बिना साइंस, बिना तकनीकी ये टेक्नोलॉजी हम फिर उठ नहीं सकेंगे। इसीलिए साइंस और टेक्नोलॉजी के इसके फाउंडेशन में हमको अपना डिसीजन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं इतना बोलता हूँ। मुझे इतना बोलने के लिए ये मौका दिया गया, इसके लिए मैडम मुहावरा, सरवर बारी साहब को और सबको मैं तहे दिल से मैं थैंक यू बोलता हूँ। Thank you so much, sir. It's an honor to be able to pick your brain. Thank you so much. और आपने बिल्कुल ये सही बात की है कि एक तो नेशनल हमें अपने सिटीजन अकाउंटेबिलिटी की भी जरूरत है, लेकिन रीजनल अकाउंटेबिलिटी की भी जरूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीख सकते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस मिलते जुलते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तो हम पहले जब ट्राई कर रहे थे वीडियो लगाना जो हमारे, सॉरी मैं यहाँ एक सेकंड देख लूँ कि सॉरी मैंने सर योशी की हमारे पास है वीडियो, अब उसका साउंड। जी शुरू कर दूं? जी प्लीज शुरू कर दूं। मैं इंट्रोडक्शन फिर से करूं या सबको मैं एक जल्दी से फिर से इंट्रोडक्शन कर लूं, या इज इट ओके? ठीक है, फिर चला देते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you for inviting me to deliver my statement to this important seminar. I am honored to provide our input on behalf of the International Network of Telling Live Lessons from Disasters, or in short, Telnet. Telnet was founded in the city of Kobe, Japan, which was hit by a severe earthquake which claimed over 6,000 lives in 1995. In Kobe, many people are still conducting storytelling activities in a variety of ways, such as indeed oral storytelling by disaster survivors, photos, artifacts such as a watch which stopped at the time of the onset of disasters, museums, commemorative ceremonies, monuments, remains such as damaged buildings, even artistic works like songs and paintings. This is a part of the background of the founding of Telnet. And in 2005, when the second UN conference on disaster risk reduction was convened in Kobe, several participants, including myself, from different countries gathered, discussed, and decided to found Telnet. In fact, Mr. Amod Dixit from Nepal, our colleague panelist of this webinar, is also one of the founding members. Now, in a formal sense, Telnet is an international network of the individuals and institutions in different parts of the world who are engaged in or support various activities of preserving the memories and or stories of what happened at the time of natural disasters and passing on such stories to the next generations as well as to other places in disaster hit areas. Many of you may agree that the story of what actually happened conveys a very powerful message, greatly significant to the heart and emotion of the person who receives the message. And such message generates profound empathy or resonance between storytellers and story receivers. And it is by this way that lessons are shared in a very effective way. This kind of lesson may not necessarily be useful knowledge in a practical term, but rather something deep in our heart, such as the way we should live a life, the way we should coexist with the nature, which is generally gentle, like the mother, but sometimes exercises mighty destructive power. We believe that the storytelling in this sense
can play an important role in pushing us from behind to put our knowledge of disaster risk reduction into actual practice. We learn many things in trainings, seminars, and schools, and we may more or less know what needs to be done so as to better prepare for future possible disasters. However, taking action in an actual term doesn't necessarily happen automatically. We tend to say that now I know what I need to do, but I'm busy today, and I will do that tomorrow, 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 tomorrow. This kind of gap between what should be done and what's actually happening is often called the last mile. I believe that this is where the emotional element of storytelling can play a big role in completing the long journey of disaster risk reduction and improving our preparedness for future possible disasters. With all that in mind, in January 2020, in commemoration of the 25th anniversary of the Kobe earthquake, we convened 2020 Telnet Forum with a view to refreshing our determination to continue storytelling activities despite inevitable risk of fading of memories. The participants were the individuals, museums, researchers, government officials, volunteers, non-profit organizations, and private companies from 21 countries and area who are engaged in various storytelling activities. This is when we had the pleasure of having Sarwar Bariji as one of the distinguished participants who shared the story of what Patan is being engaged in. And I'm happy that all this has brought myself today to this very important occasion. Among many points discussed in the forum, I just highlight that particularly in disaster education, knowledge or empathy, or knowledge or theory, and emotional element needs to go hand in hand. This is the kind of thinking that Telnet promotes. I hope that the audience of this seminar and the people in Pakistan also agree and join us in promoting and supporting the storytelling activities. I thank you again for giving me this opportunity, and thank you for your kind attention. Thank you so much. That was great. Sir Yoshi is not in front of us, but I think we can all agree कि बहुत अच्छा उन्होंने बोला. अब I would actually, I think हमारे session के अभी आखिरी speaker हैं, and फिर इसके बाद I think we will proceed to question and answer round. So Mr. Haider Ali Khan, जो एक्स सिटी नाजिम हैं बालाकोट के, वो आई थिंक हमारे साथ अब हैं, मौजूद हैं. उनका पहले इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था. सर हैदर आप हैं? जी सर मैडम. जी ठीक है सर. बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का. जी सर, तो आप प्लीज अगर आप प्लीज शेयर करना चाहें कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और आप क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, स्पेशली जो स्टोरी टेलिंग के हवाले से, जैसे डॉक्टर अभी योशी साहब ने कहा कि जो स्टोरी टेलिंग की एक बहुत एक पावरफुल एक किरदार होता है हमारी मेमोरीज याद करने का, कि हम अपने ट्रॉमा को हील भी कर सकें, लेकिन हम उससे कुछ एक प्रोडक्टिव या एक आगे बढ़ सकें, ट्रॉमा से हम हीलिंग की तरफ जा सकें. तो सर प्लीज आप अपने एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टीज अगर शेयर करना चाहें. हेलो सर, आपका माइक म्यूट तो नहीं है? नहीं, माइक म्यूट नहीं, मेरा इंटरनेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ थे. मैं भी थोड़ी दोबारा ज्वाइन कर ले एक दो मिनट में. ठीक है, तो हम इंतजार करें या हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड की तरफ चलें, और अगर वो फिर से ज्वाइन कर सकें तो हम पिकअप कर लें. जी हमारे साथ ज्वाइन कर लिए दोबारा उन्होंने कर दिया. अच्छा, ग्रेट. जी हैदर साहब. जी थैंक यू जी. सबसे पहले तो पतन ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया कि आपने हमारे आज के दिन, हम 7 अक्टूबर कल 8 अक्टूबर है बालाकोट में, और हम अपनी जो 15वीं बरसी है वो मना रहे हैं बालाकोट में. तो जितने भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद मानी साहब, सरवर बारी साहब,
जितने भी लोग हैं, डॉक्टर फरीद साहब हैं, जुल्फ़िकार भाई हैं यहाँ पर, डॉक्टर कुद्दूस भट्ट हैं, ये सब भाई भी हमारे बालाकोट से प्रॉपर हैं और मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो अर्थक्वेक के हवाले से मैं ये बात करूंगा। देखें, जब 2005 में अर्थक्वेक आया बालाकोट, उस वक्त की और इस वक्त की कंडीशन में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जैसे मोदी साहब ने बात की कि उस वक्त की कंडीशन ये थी कि बालाकोट जो प्रॉपरली, अभी की मैप हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। देखें जो हाउस हमारे क्लैप्स हुए हैं, एक तो मैं सबसे पहले बात करूंगा एरा पर, जो अर्थ की कंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी उस वक्त गवर्नमेंट ने बनाई और तमाम अथॉरिटी को मतलब जब अख्तियार दिया, तो बालाकोट में उन्होंने जितने मंसूबे स्टार्ट किए उस वक्त, पेरा इनके साथ थी, नेस्पाक असेसमेंट लाइन पे था वो साथ में, जितने प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किए, मेरे भाई यहाँ पर एग्री करेंगे जो बालाकोट के रिप्रेजेंटेटिव हैं मीडिया के, जितने प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किए अभी तक कोई प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट नहीं है। सिंगल प्रोजेक्ट जो ये हमें बता दें आकर के इन्होंने कोई एक सिंगल काम बालाकोट में किया हो, जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने हाथ तक किया है वो कंप्लीट करके गया हो। किसी का 20% काम कंप्लीट है, किसी का 50 है, किसी का 80 है, उससे ऊपर तो कंप्लीट स्कीम इनकी है ही नहीं है। वाटर सप्लाई सेक्शन पे इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था, उसको भी इन्होंने अधूरा छोड़कर वो चले गए थे। और उसके बाद जो हमें एक सिटी की उम्मीद दिलाई, सिटी ऑफ होप, न्यू बकरियाल सिटी, बालाकोट सिटी, तो वो तो हमारे लिए ख्वाब ही बनकर रह गया बालाकोट के वासियों के लिए कि जो नुकसान बालाकोट में हुआ हम देखते रहे हैं। तो उस वक्त हमारे मीडिया के भाई भी जितने नेशनल इंटरनेशनल थे, उन्होंने कश्मीर को हाईलाइट किया था ज्यादा। फोकस, लेकिन कश्मीर से मीडिया ने भी हाईलाइट किया, लेकिन को बालाकोट को विजिट करें, ऑर्गेनाइजेशन का हमने शुक्रिया अदा किया और पहले भी करते रहे हैं। जितनी एनजीओ थी नेशनल इंटरनेशनल, उन्होंने उस वक्त आकर हमारी जितनी इमदाद की है हम उससे डिनाई नहीं कर रहे, हम उन कभी भी थैंकफुल हैं। और स्पेशली जनरल मुशर्रफ साहब उस वक्त के हमारे सदर थे, उनकी जाती दिलचस्पी की वजह से बालाकोट में जो हुआ तो हुआ। अभी हमारा जो बालाकोट शहर है उसकी पोजीशन आपके सामने है कि क्या पोजीशन है। 15 साल हो गए हैं वहां पर। एरा ने जो प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट किया हाउसिंग का, तो वो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर एक बना रही है, ड्रेनिंग सिस्टम तो उसमें है ही नहीं है। एक रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्लैक टॉप, थोड़ा सा 20% हम कह दें कि वो ब्लैक टॉप किए और वो शहर बनाकर खुद गायब हो गए। और अभी उनकी जो हमारे पास रिफ्यूज है वो है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसों की डिमांड है। तो इससे पहले 1 साल हो गया हमारे चीफ जस्टिस साहब जब बालाकोट का स्पेशली सरप्राइज विजिट कर आए थे, तो उन्होंने सोमोटो एक्शन पे भी यहाँ पर वो किया था, लेकिन वो 1 साल बीत गए हैं, गवर्नमेंट अभी तक इसमें कोई जाती दिलचस्पी नहीं है। अभी पीएम साहब का हमने सुना था कि उन्होंने कोई जाती तौर पे इंटरेस्ट लेकर एक एग्रीमेंट जिससे प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम दिया है, कोई डोनर्स हैं जो प्राइवेटली इसको डेवलप करेंगे और जाकर फिर नेक्स्ट आगे क्या होगा ये अभी हमें कंफर्म नहीं तो क्या होगा, लेकिन वो कह रहे हैं होपली कि इंशाल्लाह हम उस पर कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज हमारे पास अभी वो इस वक्त भी एक रेंटेड बिल्डिंग में है और बीएचयूज की हालत 14% बीएचयूज जो हमारे हैं वो ग्राउंड पर हैं, बाकी 60% हमारे बीएचयूज भी नहीं। हमारे पास सेहत की कोई फैसिलिटीज यहाँ पर बालाकोट में नहीं है। मतलब रेंटेड बिल्डिंग में आप देखो उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो भी तबाह हाल बिल्डिंग है, उसको भी वो जल्जले के बाद जो बच जाने वाली बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग है जो खड़ी है अभी। और बाकी रोड सेक्टर हमारे पहाड़ी इलाकों के जितना हमारा हिली ट्रैक है सब हेलो जी, उनकी कनेक्टिविटी उसकी पोजीशन स्कूल हमारे हर जगह के अर्थक्वेक के वहां पर कोई जाती मसाइल पढ़ रहे हैं और हम बाद में जी जी। और जी हैदर साहब, उनकी सॉरी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जो आपका कनेक्शन है वो बहुत फंस रहा है मेरे ख्याल से। वो आपकी हेलो
जी जी जी, उनके इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू है, डिस्कनेक्ट हो गए। इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आई थैंक यू सो मच हैदर साहब, आपने बहुत कुछ बहुत वैल्यूबल चीज़ें शेयर की हैं, हमें एक अच्छा पर्सपेक्टिव और ऑन ग्राउंड रियलिटी मिल रही है अभी करंटली के बालाकोट में क्या हो रहा है। सो हैदर साहब हमारे लास्ट पैनलिस्ट थे आज के, तो अब मैं आना चाहूंगी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहले तो I would again really like to thank everyone, all of the speakers that joined us and all of the participants, और also जो हमारी audience है, thank you so much। जैसे सब बात करें और हम एक स्टोरी टेलिंग और मेमोरी और कमेमोरेशन की बात करें, तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऐसे ट्रॉमास और डिजास्टर्स को कभी ना भूलें, ताकि हम आगे बढ़ सकें, सीख सकें पुरानी गलतियों से, कि होपफुली ऐसा ना हो फिर से फ्यूचर में, बट अपेरेंटली वही कहते हैं हिस्ट्री इज डूम टू रिपीट इटसेल्फ। तो प्लीज अगर कोई कोई किसी के क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज ये जो Q&A वाला सेक्शन है उसमें आप प्लीज डाल दें। एक मेरे पास क्वेश्चन है, मैं जरा एक सेकंड पढ़ लूं। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी ये मुश्ताक चिश्ती साहब हैं, इनका क्वेश्चन है, एक जनरल सवाल है, आई थिंक कोई भी, अच्छा नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर डॉक्टर फरीद साहब। तो द क्वेश्चन इज, आफ्टर द earthquake 2005 the government of all parties has come, but so far the MPs of Mansehra district have remained silent. What is the reason for the members to remain silent? What do you think should be done now? So डॉक्टर फरीद साहब, अगर आप काइंडली इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहें। जी बिल्कुल, जब डिजास्टर हुआ था उस वक्त लोगों ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ कंट्री, बल्कि UN और बाकी जो इदारे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मावरत की थी, लोगों की खिदमत की थी, लोगों की मदद की थी। लेकिन उसके बाद जो है ना, वो जो हम रेड जोन की बात करते हैं बालाकोट की, तो बालाकोट में 135 जो NGOs पाकिस्तान में काम कर रही थी, उनमें से पतन भी काम करके गई है पतलंग के मुकाम पे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो NGOs ने भी काम किया बहुत सारा, उसमें बालाकोट शामिल नहीं था। इसको इस वजह से साइड पे कर दिया गया था कि बालाकोट जो है ये दूसरी जगह बनेगा, यहाँ पे उस वक्त ये काम भी नहीं हुआ था, बाकी तामीर का काम था। ओवरऑल हम सिचुएशन की बात करें तो 6 लाख घर जो इस जलजले से कश्मीर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जो तबाही हुई थी, जो घर गिर गए थे 6 लाख, वो घर तो बन गए, उनमें से 6,000 घर नहीं बन सके। वो चूंकि इदारा बनाया हुआ था तामीर का, इसलिए वो उन्होंने बनाना था। बाकी जो कहते हैं हम काफी हद तक काम हुए हैं, हम जो हो चुके हैं हम उनको नहीं कहते नहीं हुए, लेकिन जो स्कूलों की सूरत हाल है, 160 स्कूल आज भी नहीं बने, 22 पुख्ता सड़कें नहीं बन सकी, 32 सड़कों पे काम शुरू हो गए, अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। तो उसका जिम्मेदारी यही बात है, तो ये कुछ हम अपने ऊपर डाल लेते हैं कि लोगों की जिम्मेदारी है, उन्होंने बोले नहीं या एहतजाज नहीं किया, या फिर वही बात है कि जो शराज महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब रिट की तो अवाम के पास तो ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने लोगों की तरफ से तर्जमानी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब अगर गवर्नमेंट, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट थी, मौजूदा गवर्नमेंट है या आने वाली कोई गवर्नमेंट हो, वो उस पर काम नहीं कर रही तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। लोगों ने अपना फर्ज अदा कर दिया, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, थैंक यू फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, शुक्रिया फरीद साहब। आई होप आप सब कुछ पूछना चाह रहे हैं और विलियम साहब है कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं माइक अनम्यूट कर देता हूं। ठीक है, आप प्लीज विलियम साहब प्लीज आप अच्छा विलियम साहब प्लीज, आपका माइक म्यूट है या आप अपना अनम्यूटेड है, या आप Q&A में भेज दें, मैं पूछ लेती हूँ। जी कर दिया, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है विलियम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, मैं एक तो ये ना इस तरह पूछना चाहूँगा, जो हमारे ये फरीद साहब हैं, फरीद साहब से मैं जानना चाहूँगा कि जो लोकल सतह पे लोग कितने ऑर्गेनाइज हैं अपने इस जो 15 साल से जो हो रहा है। दूसरा ये कि लोगों ने घर बनाते हुए कितना गवर्नमेंट से ये पूछने की कोशिश की है कि अब हम किस तरह से घर बने, किस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। और अमूद साहब से मेरा ये सवाल है कि ये कह रहे हैं कि जो नॉन इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हैं, तो गवर्नमेंट की सतह पर या जो INGOs हैं या जो कोई इस तरह के इंजीनियर्स के जो हैं, उन्होंने किस हद तक गवर्नमेंट को या लोगों को
मोबिलाइज करने की या उनको एजुकेट करने की कोशिश की है कि ये कंस्ट्रक्शन का तरीका है जिसको अपनाना चाहिए, और जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है गलत, उसको उन्होंने कितना रोकने की कोशिश की है, या क्योंकि ज़्यादा तो ये अवेयरनेस की हमारे यहाँ जो ये एक एटीट्यूड की बात है कि ये जो कोरोना है इसमें भी ये कहा जाता है कि जी बस जी ये तो अल्लाह की तरफ से अब ये ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ इस तरह के एटीट्यूड्स भी हैं। जी थैंक यू। Thank you, William, for your question. Please, sir, आप अगर kindly answer कर सकें। मैंने जवाब देना है ना? जी आपके फिर अच्छा, से हाँ विलियम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ जो बालाकोट में उस हवाले से, बालाकोट नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और कश्मीर में उस वक्त बिल्डिंग कोड और इंजीनियरिंग के हवाले से मुख्तलिफ वर्कशॉप, सेमिनार्स और लोगों में शऊर बेदार किया गया था। उसके लिए बाकायदा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बल्कि लोगों को एनडीए में जब नया नया बना था उसी वक्त ज़लज़ला के बाद बना हुआ है, तो इन खतरात से आगाही के लिए उनको तैयारी के लिए ये चीजें सिखाई गई थी। और मेरे ख्याल से काफी इलाकों में, जो पहाड़ी इलाकों में हम जाएं तो वहां पर जो मकान बने हैं वो पुख्ता मकान तो नहीं, लेकिन कच्चे मकान बने, उनमें बिल्डिंग कोड ये कि धज्जी की तरह, जिस तरह अभी हमारे दोस्त नेपाल से बात कर रहे थे, इसी तरह धज्जियों की सतह पे या बिल्डिंग कोड के मुताबिक, ताकि वाइब्रेशन हो तो वो दीवार जो है ना वो इंसानों के ऊपर ना गिरे। फिर दरवाजों और खिड़कियों और जो तकोनी वो पिलर्स होते हैं, फिर इंजीनियरिंग के जो कोड हैं, अगर आप पुख्ता मकान बना रहे हैं तो नीचे जो हम खुदाई करते हैं उसमें प्लेंथ और उसके साथ बीम और उसके साथ इतना हैवी वेट नीचे डाल दें ताकि ऊपर की बिल्डिंग जो है वो अगर हिले भी तो उस तरह हो जिस तरह जापान में बिल्डिंग कोड का तरीका है। एक तो ये सिखाया गया है। बाकी लोगों में अवेयरनेस और इस अपने बुनियादी मुतालबात के लिए शऊर तो है। वही बात है, अब लोग किससे बात करें, शोर शराबा या एहतजाज तो हर चीज से मसला हल नहीं होता। अब लोग कोर्ट की तरफ गए हुए, देखते हैं वहाँ क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर फरीद, बहुत शुक्रिया। और कोई क्वेश्चंस मुझे फिलहाल नहीं नजर आ रहे। प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो Q&A में डालें। फिलहाल सब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, कौन पूछना चाह रहे हैं? मेरे लिए था शायद। वो फिर उनका अगर वो अनम्यूट कर लें फिर या वो Q&A में अगर डाल दें, आई कैन I think there was a question for me from Mr. William Parvez John, right? Yes. नहीं, wasn't it? I think वो तो नहीं से मूड सबसे था। The question was to what extent work has been done to mobilize the government agencies and others to empower them or to transmit the knowledge about non-engineered building. विलियम साहब, क्या है कि जहां तक नॉलेज की बात है, जहां तक कैसे बनाना है, कैसे क्वालिटी कंट्रोल करना है, इस सब बातों का नॉलेज अभी तक बहुत अच्छा है. The knowledge is available there, and sometimes many times there have been training programs for engineers, training programs for masons, training program for the head engineers, training program even for the administrators. The problem is, and these training programs have done wonderful work. They have their impact. So a lot of people have, they have the masons, they know how to make good houses. The problem is, मसला क्या है कि जितना हमने काम किया है वो बहुत कम है. उसको that needs to be internalized into our culture. That needs to be internalized into our day-to-day life. That needs to be our business as usual. जो ये हर एक दिन का ये होना चाहिए, हर एक दिन की ये सोच होनी चाहिए, वो हो नहीं रहा है. इसीलिए जितने पॉलिसी की बात है, जितने हमारा इफर्ट्स का बात है, जितने हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, तो इसको क्या है कि ये जो इंटरनलाइजेशन की बात नहीं हो रही है. एंड देन अर्थक्वेक और डिजास्टर आपका 1 साल हुआ, याद रहेगा, दूसरे साल में आधा याद खत्म, और तीसरे और 5वें साल में, क्योंकि हम इतने मशगूल हैं, हमारे दूसरे इतने प्रॉब्लमात हैं हमारे सामने कि उनको टैकल करते करते हम ये सब जो बात हमने ट्रेनिंग में सीखा वो भी भूल जाते हैं, और जो जलजले ने हमको सिखाया वो भी भूल जाते हैं, और जो हमको बाढ़ ने सिखाया वो भी भूल जाते हैं. जरूरी है कि
हमारे जो डेवलपमेंट प्रोसेस हैं उसमें ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात को उसमें इंटीग्रेट किया जाए, उसमें, ताकि हम भूल न जाएं कुछ दिनों के बाद में। उसमें कमजोरी है। लेकिन मैंने कहा कि सर कि ये जो एटीट्यूड की बात है वो तो सबकॉन्शियस माइंड में उसको जाना चाहिए। ये बाहरी दिमाग में रखकर वो तुरंत उड़ जाता है, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड में जो आपका डे टू डे कल्चर में यदि आप डाल सकें, लेकिन उसके लिए तो समय लगता है और कंसिस्टेंट इफोर्ट होना चाहिए। वही हम लोग वहां पर ये चूक जाते हैं कि हम ये कंसिस्टेंटली उसको नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस तो बहुत बड़ा है और अभी हमको हमारे पास मौका है कि हम इस पे काम करें और आगे के दिनों में जो हम हमारे पास ये बाढ़ या और हैजर्ड सब हैं उनके लिए हम अच्छी तरह से सामना कर सकें। लेकिन देखिए, द होल वर्ल्ड हैज टारगेटेड 2030। 2030 साल तक हमको बहुत ज्यादा काम करना है और एक साल में होने वाली चीज नहीं है, 5 साल में नहीं होगी। लेकिन हमको 2030 साल तक लगातार करना है, डे इन एंड डे आउट करना है, तब जाकर हम दूसरे मुल्कों के सामने हम अपना भी सिर ऊपर रखकर, माथा को ऊपर रखकर हम कुछ कर सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि भाई हम लोग भी जानिबकार अब ये सब मुल्क हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं कर। थैंक यू। बहुत अच्छी बात की आपने मोद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट आंसर। कोई और ऑडियंस की तरफ से कोई और क्वेश्चन है? अयाज साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? अयाज साहब प्लीज। लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज वाघा बात कर रहा हूँ पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मेरा सवाल था हैदर अली खान साहब से। मेरे ख्याल में अभी वो ऑनलाइन नहीं है शायद। हाँ, तो आप किसी और को डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर, चूंकि आप एक्स सिटी नाजिम हैं, लोकल गवर्नमेंट का आप पार्ट रहे हैं, तो लोकल गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो किस हद तक अभी तैयारी कर रहे हैं आने वाले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की, और लोगों को अवेयरनेस देने के हवाले से? क्योंकि जो हमने एक सर्वे किया था 2015 में, उसके रिजल्ट्स के मुताबिक 65% लोगों की राय ये थी कि इरा का जो डिजाइन है उसको फॉलो नहीं किया गया। तो आप क्या समझते हैं सर कि आप इस हवाले से लोगों को अवेयरनेस देने के लिए या एनडीएमए के साथ, पीटीएमए के साथ आपकी कोलैबोरेशन, आपकी उनके साथ टॉक इस हवाले से कितनी रहती है और किस हद तक लोग अवेयर हैं इस हवाले से सर? जी हैदर साहब ने ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी, थैंक यू। जी थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो भाई आपने बात की लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से कि उसमें किस तरह पार्टिसिपेशन है या नहीं है। ये तो जब इलेक्शन गवर्नमेंट अनाउंस करेगी तो जाहिर बात है वो गेमा गेमी इलेक्शन के दौरान ही हो जाती है, पहले से कोई प्रिपेयर्ड अपना तौर पे नहीं होता। और दूसरी आपका क्वेश्चन था कि एनडीएमए या इरा के साथ इस पे क्या वो पार्टिसिपेशन हुई है या उन्होंने किस किस्म के घरों के हवाले से। सबसे पहले बात तो एनडीएमए तो अभी जाकर उन्होंने मेरे ख्याल में 3-4-5 साल हुए हैं उसको किया। उससे पहले तो एरा को इन्होंने एंगेज किया था। एनडीएमए इतना ज्यादा फंक्शनल नहीं था उस वक्त। एरा ऑल एंड ऑल अथॉरिटी थी जो हमारे इस एरिया में काम कर रही थी। तो एरा वालों ने ज्वाइंट इवेंट्स किए हैं उस वक्त, थोड़े बहुत जो उनसे हो सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपरली कोई जो हमारा बालाकोट है उसमें प्रॉपरली उन्होंने कोई ये नहीं एक नोटिफिकेशन टाइप या कुछ ऐसी चीज नहीं थी कि ये रेड जोन डिक्लेयर है। उसका कोई नोटिफाइड नोटिफिकेशन नहीं था सरकारी तौर पे कि वो आकर करते, या उस पर रोकने की उन्होंने कोशिश की है, नोटिस भी किए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहबाज ने भी किए हैं, एससी साहबाज ने भी किए हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट ना बनाए तो फिर लोगों ने खुद तो कुछ ना कुछ हाथ पांव हिलाने हैं, उन्होंने तो खुद तो बनाना है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट स्टोरी तक वो उन्होंने अलाउ किया था, लेकिन यहाँ पर सेकंड स्टोरीज और थर्ड स्टोरीज इवन के फिफ्थ स्टोरीज तक यहाँ पर अभी बन चुके हैं बालाकोट में। और उसको अभी टीएमए देख रहे हैं। एरा की यहाँ पर कोई सच अथॉरिटी अभी यहाँ पर नहीं रही कि वो यहाँ पर कोई लागू कर सके, कि वो अपने आप प्रोजेक्ट ही हाथ में छोड़ के चले गए हैं, तो अभी बाउंड किससे करेंगे। तो अभी ऐसा टीएमए वाले यहाँ पर कोई नोटिस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन वो नोटिस की हद तक ही रहते हैं, बनाने वाला अपने तौर पे बना लेते हैं। जी जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। आई होप के थैंक यू। आपका आगा साहब आपका हो गया क्वेश्चन आंसर्ड।
थैंक यू सो मच हैदर साहब। अच्छा, तो आई थिंक ये हमारा लास्ट थैंक यू जी, क्वेश्चन थैंक यू। ऑडियंस की तरफ से। तो मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बट बिफोर वी गो मेरा एक वैसे छोटा सा सवाल था। अगर शराज साहब अगर अभी तक हैं, आई थिंक शराज साहब नहीं है, लेकिन अगर कोई और ये आंसर करना चाहे, बहुत छोटा सवाल है मेरा एक। जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे जो अमाउंट्स होती हैं, जैसे जो बालाकोट के लिए फंडिंग थी, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट को रीडायरेक्ट की गई, मुल्तान में भी रीडायरेक्ट की गई। तो कोई मुझे बता सकता है कि लीगली या ये मतलब कि ये अलाउड है गवर्नमेंट में, या इसका अगर किसी को पता हो कि इसकी जैसे ये किस तरह काम करता है। तो ये मेरा जी एक बहुत सवाल। शुक्रिया। मैं इस हवाले से जवाब देता हूँ। ये अलाउड नहीं होता। जब एक प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ फंड्स, वो फंड जो गवर्नमेंट रखती है अपनी तरफ से, वो तो अलाउ हो सकते हैं, गवर्नमेंट की मर्जी है। लेकिन जो मखसूस लोगों के लिए, जैसे मुतासिरीन जलजला थे, मुतासिरीन फ्लड हैं, या आजकल वो कहते हैं अपना कोरोना है, इस तरह के जो डिजास्टर में फंडिंग होती है, उस फंडिंग को जिस चीज के लिए आपने रखा हुआ है वो सिर्फ वही करना होता है। कानूनी तौर पे दूसरी जगह पे मुंतकिल नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। ठीक है डॉक्टर थैंक साहब यू सो मच। की बात से मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर अटेंडिंग। आई थिंक ये काफ़ी अच्छी गुफ्तगू होगी। एंड हम अभी भी हम एक पैंडमिक, एक डिज़ास्टर में ही हैं। तो आई थिंक इसलिए ये तो कभी इस तरह की चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, डिज़ास्टर्स कभी ख़त्म नहीं होते। वी कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड इनफ। तो आई थिंक ये स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप कि बालाकोट में, मुझे वैसे सही बारिश तरह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कोरोना के केसेस कितने हैं, बट आई होप कि ठीक हो। हाँ, फॉर द वाइंडिंग नोट, आई वुड लाइक टू इनवाइट सर्वर बारी टू से अ फ्यू वर्ड्स। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ अपने पैनलिस्ट का, ख़ास तौर पर जोशी साहब जापान से, जो टेलनेट के बानी हैं, और अपने दोस्त मोद डिक्सट का, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की जो डिज़ास्टर का और अर्थक्वेक के मामला थे उसके हवाले से। और इसके अलावा हैदर साहब और शराज साहब, डॉक्टर फरीद साहब और बाकी जो हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं, उनका बहुत मशहूर हूँ। लेकिन हमारे पास जो सबसे अहम बात है कि जैसे आपने कहा कि 15 साल गुजर जाने के बावजूद हम कहाँ खड़े हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि बज़ाहिर तो बालाकोट से दूर से अगर देखें तो वो जो नीली छतों वाले घर थे वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन 65% घराने ऐसे हैं, यानी कि ऐसे घर हैं जिनको तामीर करते वक्त जो लोग हैं उनके पास गालिबन शायद इतने रिसोर्सेज नहीं थे, और शायद जो डिज़ाइन था गवर्नमेंट का वो देर से पहुंचा। उन्होंने घर जो बनाए वो वैसे ही है जैसे पहले वाले घर थे। तो जैसे 7 अक्टूबर 2005 को किसी को मालूम नहीं था कि कल सुबह क्या होने वाला है, और आज चूंकि घर उसी तरह के बने हुए हैं तो हमें नहीं पता कल खुदा न खास्ता अगर ज़लज़ला आएगा तो फिर क्या होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे दोस्त डॉक्टर अमूद डिक्सन ने कहा है कि जितना अवाम शोर मचाएंगे उतनी ही चीज़ें बेहतर होती हैं, क्योंकि हुकूमतें अगर किसी चीज़ से डरती हैं तो बंदूकें नहीं हैं, वो अवाम की आवाज़ें होती हैं। और वो आवाज़ें गालिबन शराज साहब ने जो काम किया, लेकिन जो उसके बाद साकिब निसार साहब चले गए, तो मेरा अपना ख्याल है, मैं पिछले हफ्ते बालाकोट, नारायण, कागान सबका विजिट किया, बहुत सारे दोस्तों से वहाँ मुलाकात की। लेकिन एक रेस्टोरेंट में एक बच्चा था, उससे मैंने पूछा कि जब ज़लज़ला आया था तो आपकी उम्र क्या थी, तो उसने कहा मैं 6 साल का था और मैं स्कूल में था, और जब हमारा स्कूल गिर गया उसमें 7-8 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए और मैं बच गया। लेकिन कई माह तक मेरा स्कूल नहीं खुला, तो मेरे माँ बाप जो गरीब थे उन्होंने मुझे एक रेस्टोरेंट में काम करने पे लगा दिया, यानी कि मैं चाइल्ड लेबरर बन गया। और मैं
तब से लेकर अब तक मैं दोबारा स्कूल नहीं जा सका, और आज मैं रेस्टोरेंट में का वेटर हूँ, और मैं उस वक्त भी वेटर था। कितने स्कूल हैं अभी आपने बताया जो नहीं बन पाए, और कितने बच्चे होंगे जिनके स्कूल नहीं बने और वो वेटर बन गए बजाय डॉक्टर बनने के, बजाय इंजीनियर बनने के, बजाय कोई और काम करने के। तो एक्सक्यूज मी, तो हम यही चाहते हैं कि हम जो 2005 की कहानियां हैं इनको जिंदा रखें, ताकि हमें मालूम हो कि अगर हम ये वाकया याद नहीं रखेंगे, हम इस वाकये के पीछे जो वजूहात थे वो नहीं ढूंढ पाएंगे। तो जैसे कि अमूद ने कहा कि हमारे आबा अजदाद ने घर बहुत अच्छे बनाए थे, लेकिन फिर जो है वो ऐसा ऐसा गलत हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि देहातों में काम करना निस्बतन आसान है, लेकिन शहरों में बहुत गड़बड़ है, और जो अफसरान हैं वो तमाम पॉलिसी जानने के बावजूद काम नहीं करते। तो मेरा यही ख्याल है कि हमें जो 2005 के जल्जले की कहानियां हैं वो आज भी उसी तरह जिंदा है, और अगर हम उनको जिंदा रखने में कामयाब हो सके, अगर हम वो कहानियों का जो सबक है उसको हुक्मरानों तक पहुंचाते रहें और उनकी नींद हराम करते रहें शोर मचा मचा के, तो मेरा ख्याल है साकिब निसार साहब का जो फैसला उस पर अमल दरामद होगा। नहीं तो अमल दरामद नहीं होने वाला। अगर अगर यूसुफ रजा गिलानी जो है वो जस्टिस आसिम साहब ने भी कहा था, आप सब ने भी कहा है कि वो 66 अरब रुपए में से कितने अरब जो है वो मुल्तान चले गए और कितने सखर चले गए। तो फिर हुक्मरान अगर यही कुछ करते रहेंगे कि हमारे लिए जो पैसे आते हैं वो किसी और मद में डाल देंगे ताकि अपना वोट बैंक पक्का कर सके, तो मेरा ख्याल है कि हम डेवलपमेंट को, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। हमें इन सब चीजों को जोड़ के देखना है, क्योंकि बालाकोट 2005 से पहले पाकिस्तान की उन अजला में था जहां पर जो लिटरेसी रेट है, शरह खानगी 40% से भी कम थी, और अगर स्कूल हमारे नहीं बने तो वो लिटरेसी रेट शायद और गिर चुका होगा। एक और एनजीओ ने स्टडी की थी कि 25% जो स्कूल हैं बालाकोट के उनमें बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि फिर तरक्की कहाँ है। अमोद ने कहा हमारे पास 2030 तक का वक्त है, हमारे पास 15 साल 10 साल सिर्फ रह गए हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे काम करने हैं, और वो काम वो कितने कर रहे हैं हमें हर साल हुकूमत को बताना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत सारे काम नहीं किए, और इन कामों को वो करे। अगर वो अपना सर ऊंचा करके कौमों की जो मीटिंग्स होती हैं जो यूएन में होती हैं वहां पर अपना सर बुलंद करके कह सके कि हमने इतना काम कर दिखाया है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमें शोर मचाना पड़ेगा, हमें हुकूमत को आगाह करना पड़ेगा, हमें हुकूमत को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, हमें सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करनी पड़ेगी कि साकिब निसार साहब के फैसले की जो कंटेम्प्ट कर रहे हैं लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ आखिर में, और उम्मीद करता हूँ कि हम आपस में राब्ता रखेंगे और सब लोग मिलकर ये आवाज जो है जल्जला ज़दगान की वो वहां तक पहुंचाएंगे जहां पहुंचनी चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस अब मैं रैप अप ही करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, एंड जो हमारे दोस्त अभी हैं जो बालाकोट से ताल्लुक रखते हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट कल के लिए, और हम आप लोगों को याद रखेंगे कल भी, और इंशाल्लाह हम यहाँ भी अपनी आवाज़ उठाएंगे कि जो हम जहाँ से भी हमारा ताल्लुक है लोग ना भूलें कि 8 अक्टूबर को क्या हुआ था। बहुत शुक्रिया सबका, एंड प्लीज हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। Thank you very much. It was a wonderful occasion. डॉक्टर फरीद साहब बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, हैदर अली खान साहब बहुत अच्छा लगा हमको, फिर याद आ गई उन दिनों की बात 2005, 6, 7 साल की बात। और जुल्फिकर अली साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। सरवर वाली साहब ये बहुत मेरे लिए, अभी हमने लगता है कि हमने अभी 2-3 घंटे हमने इसमें खर्चे किए, लेकिन ये बहुत हम मेरे जीवन में बहुत, जिंदगी में बहुत
याददाश्त रहेगी हमारी। लगता है कि मैं पाकिस्तान पहुंच गया और फिर अपनों के साथ बैठा हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, both, sir. Thank you. Thank you, Mavra.